میں نے اپنی پہلی تقریر میں یہ گزارش کی کہ ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی پر اتفاق کیا تھا، آئیں آج چارٹر آف اکانومی کے اوپر اتفاق کرتے ہیں۔ میں نے پھر دوبارہ پیشکش کی اپنی جو تقریر تھی بجٹ کے حوالے سے، آئیں دوبارہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں، آئیں مل بیٹھیں اور معاملات طے کریں۔ وزیراعظم کی اپوزیشن کو ایک بار پھر مذاکرات کی دعوت۔ شہباز شریف نے قومی اسمبلی اجلاس میں کہا، میری میثاق معیشت کی پیشکش کو حقارت سے ٹھکرایا گیا۔ اگر بانی پی ٹی آئی کو جیل میں مشکلات ہیں تو آئیں بیٹھ کر بات کریں۔ ہم انڈر ٹرائل تھے تو زمین پر لٹایا گیا، ادویات بند کی گئیں، گھر سے کھانا نہیں آنے دیا گیا۔ ہم نے میثاق جمہوریت پر اتفاق کیا، اب میثاق معیشت پر بھی اتفاق ہونا چاہیے۔ بات تب ہوگی جناب اسپیکر جس وقت میرا وزیر اعظم عمران خان صاحب باہر آئیں گے۔ یہ ہاؤس اس وقت چل سکے گا جس وقت رسپیکٹ ہوگی۔ بات تب ہوگی جب بانی پی ٹی آئی سمیت ہمارے تمام قیدی رہا ہوں گے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا وزیر اعظم کی تقریر پر رد عمل، کہا یہ ہاؤس اس وقت چل سکے گا جب ہمارا احترام ہوگا۔ شہباز شریف نے اپنی والدہ شمیم بیگم کے جنازے کا ذکر کیا، ہم کلثوم نواز کے جنازے میں شریک ہوئے، میں اپنے والد کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکا۔ مفاہمت تب ہوگی جب آپ زیادتی کا احساس کریں گے۔ مولانا آپریشن عزم استحکام کے حامی یا مخالف، کنفیوژن برقرار۔ قومی اسمبلی اجلاس کی تقریر میں آپریشن کی مخالفت، ساتھ ہی خیبر پختونخوا کے کچھ اضلاع میں بدامنی کا کہہ دیا۔ بولے میں نے مشورہ دیا تھا یہ پنگا نہ لو، کوئی بھی ایسی حکومت کو نہیں مانے گا۔ سفارتی لحاظ سے ہمارے وزیر اعظم کامیاب ہو کر نہیں آئے، کہا عوام حکومت کو ٹیکس نہیں دیں گے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ پیسہ آئی ایم ایف کے پاس جائے گا۔ اپنی تقریر سینسر کرنے کے اقدام کو غیر جمہوری رویہ قرار دے دیا۔ کسی کے ساتھ ہمارا جھگڑا نہیں، ہم صرف اور صرف ایک بات کرتے ہیں، رول آف لا کی۔ رول آف لا تب ہو سکتا ہے جب عوام کے بنیادی حقوق محفوظ ہو۔ جو لوگوں کو انصاف دیتا ہے آج وہ خود اگر انصاف کے طلبگار ہیں تو عوام کے فنڈامنٹل رائٹس کی پروٹیکشن کیسے ہوگی؟ کسی سے کوئی جھگڑا نہیں، صرف قانون کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا لاہور میں وکلا کنونشن سے خطاب، بولے بانی پی ٹی آئی ڈیل پر یقین نہیں رکھتے، دیر سے انصاف ملنا بھی ناانصافی ہے۔ منصف آج خود انصاف کی طلبگار ہیں، عوام جدوجہد میں ججز کے شانہ بشانہ ہیں۔ رؤف حسن کا کہنا ہے کہ کل سپریم کورٹ میں ایسی چیزیں کہی گئیں جن کا حقائق سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ ہم نے 3 بار انٹرا پارٹی الیکشن کرائے اور نتائج بھی جمع کرائے۔ ملک میں بجلی وافر مقدار میں موجود، کراچی میں 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ، چہر قائد میں گرمی سے 442 لوگ مر گئے۔ ایم کیو ایم کے رہنما مصطفیٰ کمال کی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا موجودہ چیلنجز کا مقابلہ روایتی بجٹ سے نہیں ہو سکتا، محصولات بڑھانے سے کاروبار ٹھپ ہو جائیں گے اور بے روزگاری بڑھے گی، ٹیکس نہ دینے والوں پر بوجھ ڈالنا چاہیے۔ وزیر اعظم سے خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں ایم کیو ایم کے 3 رکنی وفد کی ملاقات۔ متحدہ کے وفد نے تنخواہ دار طبقے پر مزید ٹیکس اور بجٹ پر اپنے تحفظات وزیر اعظم کے سامنے رکھے۔ ملاقات میں سندھ کے شہری علاقوں میں کے الیکٹرک اور ہیسکو کی ناقص کارکردگی اور اضافی بلوں کے معاملے پر بھی بات ہوئی۔ Demand number 133. I beg to move that a sum not exceeding rupees 45 billion be granted to the federal government to meet expenditure during the financial year ending 30th June 2025 in respect of capital outlay on Railways Division, demand number 133. The question is that demand number 133 as moved may be granted. قومی اسمبلی اجلاس میں مطالبات زر کی مرحلہ وار منظوری، اپوزیشن کی کٹوتی کی تمام تحریک مسترد۔
वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मुख्तलिफ वज़ारतों और डिवीजन्स के मुतालबात ज़र मंजूरी के लिए पेश किए। इस्लामाबाद की ज़िली अदालतों के लिए 1 अरब 36 करोड़, हवाबाजी डिवीजन के 26 अरब 17 करोड़ के 3 मुतालबात ज़र मंजूर, मौसमियाती तब्दीली के 7 अरब 26 करोड़ 72 लाख रुपए के 2 मुतालबात ज़र भी मंजूर। वज़ारत तिजारत और दिफाई पैदावार डिवीजन के 2 मुतालबात ज़र मंजूर, मवासलात डिवीजन के 65 अरब 31 करोड़ के 4 मुतालबात ज़र मंजूर कर लिए गए। चीनी सनतों की पाकिस्तान मुंतकिली के लिए पाक चीन जॉइंट वेंचर की मंजूरी, सरमायाकारी से मुतालिक वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में अंदरूनी और बैरूनी सरमायाकारी का फ़रोख्त हुकूमत की अव्वलीन तरजीह करार दे दी। हुकूमत कारोबार दोस्त माहौल फराहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रही है। वज़ीर आज़म की खुसूसी इक़्तिसादी जोन से मुतालिक कानून के मुसवदे पर नज़र-ए-सानी की हिदायत। पेट्रोलियम डिवीजन के अमूर पर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अलग इजलास। थरकोल ज़खायर तक रसाई के लिए रेलवे लाइन बिछाने के लिए प्लान तलब। कौमी असम्बली की 6 कायमा कमेटियों के सरबराहान का इंतखाब, पीपल्स पार्टी के सैयद नवीद कमर कायमा कमेटी बराए खजाना के चेयरमैन मुंतखब। हिना रबानी खर कायमा कमेटी बराए खारिजा की चेयरपर्सन बन गई। एजाज हुसैन जाकरानी कायमा कमेटी बराए मवासलात। अब्दुल कादिर पटेल कायमा कमेटी बराए मैरीटाइम अफेयर्स। डॉक्टर महेश कुमार मालानी कायमा कमेटी बराए नेशनल हेल्थ सर्विसेज एंड कोऑर्डिनेशन। खालिद हुसैन मक्सी कायमा कमेटी बराए आबी वसाइल के चेयरमैन मुंतखब। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गर्द आलूद हवाएं, आसमान पर सुमई बादलों के डेरे। बहरिया टाउन, सरजानी, सायमा विलाज और गडाब टाउन में आंधी। गर्मी की शिद्दत में कदरे बेहतरी, हब में हल्की बारिश। महकमे मौसमियात की 1 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। रवा हफ्ते मुल्क में गर्मी की लहर में कमी का इम्कान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जेहलम, चकवाल समेत कई शहरों में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश मतवक्के। 28 से 30 जून तक तेज बारिश के बाद इस्लामाबाद, रावलपिंडी, नारोवाल में अर्बन फ्लडिंग का खदशा, मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। किराए पे हमारे मकान है, बिजली के बिल इतने हैं कि हम रो रो के अपने बिल कैसे पूरा कर सकते हैं। हम गरीब लोग तो, हमारे से मसले ये हल नहीं हो रहे। गर्मी है, लोड शेडिंग, ऊपर से लाइट ना है, कारोबार ठप। बिजली तो है नहीं, ना दिन को है ना रात को है। लोड शेडिंग ही लोड शेडिंग। हुकूमत को चाहिए कि कम से कम बिजली बहाल किए। घंटे के बाद बिजली आती है, कभी 2 घंटे बाद आती है, कभी 3 घंटे के बाद 1 घंटा बिजली आती है। शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग, बिजली की तरसीली कंपनियों ने आवाम का जीना दोभर कर दिया। पेशावर और मज़ाफ़ाती इलाकों में 12 से 18 घंटे बिजली गायब। कराची के बाज़ इलाकों में 14 घंटे की लोड शेडिंग मामूल। लाहौर और गिरदोनवाह में 5 से 6 घंटे बिजली बंद रहने लगी। आपने देखा होगा मैं अपने काम से काम रखता हूँ। मेरा नहीं है कि इधर तस्वीर आ जाए, इधर भाग जाऊँ, उधर दौड़ जाऊँ और दिखाता रहूँ। जो ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी कर लूँगा, वो करके भी दिखा दूँगा। अल्लाह ताला के बाद अपनी लीडरशिप को और सिंध के लोगों को जवाब दे हूँ। सिंध असम्बली के इजलास में बजट पर बहस जारी। वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि अपने काम से काम रखता हूँ, इधर उधर नहीं देखता। अल्लाह के बाद सिंध के लोगों को जवाब दे हूँ। जून जुलाई में बारिशों के बायस पानी का बहाव तेज होता है। सूबे में सैलाब से बचाव के इक़दामात कर रहे हैं। हुकूमत बड़े लोगों को टैक्स नेट में लाने में नाकाम रही। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। ऐवान में बोले कि अगर आप अच्छा काम करेंगे तो हम जरूर तारीफ करेंगे। ऑपोजिशन की तजावीज़ शामिल करना माशी और सियासी जीत होगी। बिलावल भुट्टो ने कौमी असम्बली इजलास में जबरदस्त तकरीर की। पंजाब असम्बली ने 5446 अरब रुपए का बजट कसरत राय से मंजूर कर लिया। ऐवान ने फाइनेंस बिल की मंजूरी दे दी। ऑपोजिशन की तमाम तहरीक मुस्तरद।
वज़ीर आला का पंजाब भर के नदी नालों की सफाई का हुक्म, सैलाब के खदशे के पेश नज़र डेली रिपोर्ट तलब। मरियम नवाज का पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हेड ऑफिस का दौरा, नदी नालों की सफाई, तजावुजात और रुकावटें हटाने, सैलाब की सूरत में मकामी आबादी के बरवक्त इनखला की हिदायत। कहा दुनिया भर में अर्ली फ्लड वार्निंग सिस्टम मौजूद है, पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं। वज़ीर आला का वॉल्टन रोड की रीमॉनिटरिंग, मॉडलिंग और अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट का दौरा। मरियम नवाज ने खुद नाले और रोड की तामीर का जायजा लिया। अपना घर अपनी छत प्रोग्राम जो है चीफ मिनिस्टर साहबा जो शुरू करने जा रही हैं, ये 1 लाख घर बनने हैं। 14 अगस्त को मरियम नवाज शरीफ साहबा इस मंसूबे का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह करेंगे। 8,500 के करीब बच्चियों ने अप्लाई किया और चीफ मिनिस्टर साहबा ने कहा कि बच्चों के लिए कोई बैलेटिंग नहीं होगी, सब के सब को जो ये बाइक्स हैं ये उनको प्रोवाइड की जाएंगी। और 400 अरब रुपए का किसान कार्ड जो है उसकी कल मंजूरी दी गई है। पंजाब हुकूमत 100 नए मंसूबे शुरू कर रही है। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू, बोली वज़ीर आला 14 अगस्त को अपना घर अपनी छत प्रोग्राम शुरू कर रही हैं। पंजाब भर में 1 लाख घर बनाने की मंजूरी दे दी गई है। जिन बच्चों ने इलेक्ट्रिक बाइक्स के लिए अप्लाई किया सबको मोटरसाइकिलें दी जाएंगी। 400 अरब रुपए के किसान कार्ड की मंजूरी दे दी गई। रमेश सिंह अरोड़ा बोले मौजूदा हुकूमत ने जिस तरह अक़लियतों के साथ सलूक किया माजी में ऐसा कभी नहीं देखा। फैसल वावडा ने तौहीन अदालत केस में सुप्रीम कोर्ट से गैर मशरूत माफी मांग ली। समाअत के दौरान कहा मेरी न्यूज कॉन्फ्रेंस से अदलिया का वकार मजरूह हुआ तो गैर मशरूत माफी मांगता हूँ, खुद को सुप्रीम कोर्ट के रहमो करम पर छोड़ता हूँ। अदालत से कार्रवाई खत्म करने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शरी मिजारी की 2022 में इस्लामाबाद से गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दे दी। जस्टिस मोहसिन ने महफूज फैसला सुना दिया। 21 मई 2022 को एंटी करप्शन पंजाब ने शरी मिजारी को गिरफ्तार किया था। अदालत ने सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन और महकमा दाखिला पंजाब को तहकीकात का हुक्म दे दिया। अदालत ने कमीशन की रिपोर्ट को भी कलअदम करार दे दिया। मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का खदशा। 1 जुलाई से पेट्रोल 7 और डीजल 10 रुपए लीटर महंगा हो सकता है। आइंदा बजट में लेवी की मद में 20 रुपए इजाफे के सबब कीमतों में इजाफे का इम्कान। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में $8 फी बैरल तक इजाफा हो चुका। ICC T20 वर्ल्ड कप कल 2 सेमीफाइनल खेले जाएंगे। अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका मद्दे मुकाबिल होंगे। भारत और दिफाई चैंपियन इंग्लैंड में जोड़ पड़ेगा। ICC T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी अंपायर एहसन रजा पहली बार सेमीफाइनल में जिम्मेदारी अंजाम देंगे। ICC ने T20 की नई रैंकिंग जारी कर दी। भारत के सूर्या कुमार यादव से ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड ने पहली पोजीशन छीन ली। कौमी कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की भी एक दर्जा तनज़्ज़ुली। फिल सॉट तीसरे, बाबर आजम चौथे, मोहम्मद रिजवान 5वें नंबर पर आ गए।